wonderful reading scripture for us. Now, let us clap together for the glory of God. Especially, I now request Reverend Dr. Prachiranjan Das come and share the word of God. Thank you very much. A warm welcome to all of you, all the delegates and dignitaries of Wellspring International Christian University and United Independent Christian Council of Asia. I welcome you all in the name of Jesus, and I am very much privileged for this occasion because this year only I was sitting there in the convocation ceremony, and today I am privileged and honored to be here on the dais. Praise God for this great and grand opportunity. And I am double blessed because 18 years after I am meeting Pastor Ranjan Raut and Pastor Kanta Raut, who actually told me that the call of God is very vivid and you have to come out from the shipping life, the sea life, what I was doing there, and serve the Lord. Hallelujah. Yeah. Thank you very much, Pastor. And I'm thankful for this opportunity once again to all of you. We have you seen yourself after wearing the robes? Have you taken selfies after wearing the robes? जो गाउन आपने पहना है उसके बाद आपने सेल्फी लिया है उसके साथ में? I hope you have done it. And after going to your home, look at the thing you have worn. क्यों हमको ये दिया गया भाई? इतना मेहनत करके डॉक्टर पॉल ने इतना सारा अरेंजमेंट किया और हमको बुला के ये सब पहना है, क्यों? Why? ये जो डिग्रीज आप लेके जा रहे हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं, why? And all these, because this is the ordination part of the ceremony. I wish all the servant of God who are going to be ordained, just look at them. They are wearing white robes, and you all are coded in different colors. Why all of this has happened? Because we are unique people. Hallelujah. We are unique people, and there is some uniqueness God has put in our life, and He is going to do that in our ministry also. Hallelujah. Hallelujah. The uniqueness is going to reflect in our ministry henceforth. Hallelujah. It is the plan of God. It is not by chance we are here. It is not by chance we are here. हम लोग ऐसे आते आते नहीं आ गए, हम लोग बुलाए गए हैं. हालेलुया. हम लोग बुलाए गए हैं, हम लोग को परमेश्वर ने चुन के यहाँ पे लाया है. That is the verse what we read now. अभी जो हमने पढ़ा, ये जो वर्स हमने पढ़ा, ये किसी को मेरे ख्याल से पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने इसको बहुत बार सुना है, काफी बार सुना है और ऐसे ही पढ़ के निकल गए. मुझे नहीं लगता अभी जैसे मंगलदास भाई ने पढ़ा तो किसी ने बाइबल खोला होगा, क्योंकि थैंक यू ब्रदर. एंड आई विल टेल यू टू रीड आल्सो इन हिंदी बिकॉज आई डोंट हैव हिंदी बाइबल, तो मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ा. तो ये हमारे अंदर बैठ गया ये जो बात लिखा गया है, लेकिन आज कुछ अलग प्रभु बोलना चाहता है इसमें से. हालेलुया. कुछ अलग प्रभु बोलना चाहता है. एंड I like the name of the church pastor has given, Alag Church. Hallelujah. 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 The name signifies what he wants. Hallelujah. What God wants. Your ministry is very important to God's kingdom, because He has planned and designed your ministry. It's not you who has designed your ministry, and you are not yourself has chosen this ministry. अरे मेरे कुछ नहीं हुआ तो चलो ये कर लेते हैं. मैं पान का दुकान खोला वो नहीं चला, शराब का दुकान खोला वो नहीं चला, मैं कुछ बिजनेस में घुसी वो नहीं चला, काम पसंद नहीं आता है तो कुछ नहीं हुआ तो चलो 2-4 बाइबल पढ़ लेते हैं. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. एंड आप यकीन कर लो, आप टिक नहीं पाओगे.
You cannot stay long. आप टिक नहीं पाओगे मिनिस्ट्री में. There should be a call for that. Hallelujah. There should be a call for that. और परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो हमने पढ़ा 16 आयत में लिखा है, 15 जॉन चैप्टर 15 वर्स 16. मैं इजी टू रीड वर्जन पकड़ा हूं, आप अपने अपने वर्जन में थोड़ा चेक कर लीजिएगा. इसमें लिखा है, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चूज यू. इट्स नॉट अबाउट चूजिंग. अरे ये वेल स्प्रिंग नहीं होने को हो के कोई दूसरा होता तो और अच्छा होता. मैं जाके वो बाइबल कॉलेज में पढ़ता तो अच्छा होता, वो डिग्री होता तो अच्छा होता. नहीं, इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज. These degrees will not take you to heaven. This degree will not make you fruitful. This will not give you blessings from heaven. But why God has chosen given this opportunity to you all and also to me, because He has chosen me and He has chosen you all. Hallelujah. He has chosen you all, and God says, I gave you this work. इसी टू रीड में लिखा है. और आप केजेवी अगर पढ़ते हैं, केजेवी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, आई अपॉइंट यू फॉर दिस. ये अपॉइंटमेंट है बॉस, ये ऐसा वैसा काम नहीं है. ये काम दिया गया है. दिस इज एन अपॉइंटमेंट. ये नियुक्त किया गया है. ये परमेश्वर ने नियुक्ति दिया है. यही ड्यूटी है, यही काम है. अब काम हमने ज्वाइन कर लिया है तो मनमानी उसमें नहीं चलता है. मैं अपने मन से आऊंगा, अपने मन से जाऊंगा, मैं अपने इच्छा से काम नहीं. हर काम का एक सिस्टम होता है. आप जहां भी ज्वाइन करोगे, जहां भी नौकरी करोगे, जहां भी आप कुछ करोगे, उसका एक एथिक्स होता है, उसका एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस में काम करना है. ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर लूं. ऐसा नहीं कि 10 बजे 12 बजे मैं आके पहुंचूं और मालिक को बोलूं, मालिक थोड़ा लेट हो गया. डेली लेट होगा, प्रभु को वो मालिक बोलेगा तो हमेशा के लिए लेट हो जाएगा. तू जा, चला गया यहां से, मैं दूसरे को रख लूंगा. याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, वो पत्थर से भी अब्राहम के लोगों को झुका सकता है. हालेलुया. वो जमीन से कुछ भी कर सकता है. वो बंजर जमीन में वो पौधे उगाने वाला परमेश्वर है. वो पानी निकालने वाला परमेश्वर है. ऐसा परमेश्वर हमको चुना है. हम कोई बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं कर लिया अपने जीवन में. हम बड़े कुछ एक अचंभा काम नहीं कर दिया है कि मैं प्रभु में आ गया. ऐसा कुछ नहीं हासिल कर लिया कि मैं प्रभु में आ गया. मैं बड़ा धार्मिक ठहरा नहीं हूं. मैं बहुत अच्छा काम नहीं किया हूं कि प्रभु मुझे ये सब दे दिया. ऐसा कभी नहीं समझेंगे हम. कभी नहीं सोचेंगे कि कभी अपने दिमाग में नहीं डालेंगे कि ये सब मेरा काबिलियत है. इट्स नॉट माई काबिलियत. इट्स नॉट दैट आई डिजर्व इट. It is because He has given His grace upon me. Hallelujah. ये ग्रेस है मेरे प्यारे मित्रों. मैं कभी सोचा भी नहीं था कभी डॉक्टरेट मिलेगा, कभी रेवरेंट होगा, कभी वो होगा, लाल पीला हरा. ये मैं दूर से देखता था. आज मैं सामने देख रहा हूँ. It's not because I deserve this. It's because God has chosen us. Hallelujah. We are appointed. तभी नौकरी नहीं थी, अभी नौकरी में लगे हैं. कभी नौकरी नहीं थी, हम अपने मनमानी करते थे, मिनिस्ट्री करते थे. अभी टोपी लग गया ना, अभी गाउन पहन लिए, अभी यूनिफॉर्म में आ गए, अभी नौकरी शुदा हो गए. अभी ड्यूटी और बढ़ गया, काम और बढ़ गया, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया. अभी प्रभु बोलता है, इतने में मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए. और दिखा तू क्या कर सकता है प्रभु के लिए. और दिखा तू प्रभु के लिए कितना काम कर सकता है. प्रभु के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है तू. मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु ये हमसे चाहता है. प्रभु बोलता है, मैं तुझे चुना हूं, तू मुझे नहीं चुना है. प्रभु ने हमें चुना है. और क्या लिखा है? लिखा गो एंड प्रोड्यूस फ्रूट. हाँ, फ्रूट तो हमारा इंग्रेजी में गो एंड प्रोड्यूस फ्रूट. ये फल फलना है. हम तो सोचे तो भाई फल नहीं फलेंगे, पैसा बढ़ेगा कैसे, आएंगे मिनिस्ट्री में और सर्च करेंगे, चिंता करेंगे कहां से माल कमाया जाए, कैसे हमारा घर बड़ा हो, कैसे मेरा गाड़ी बड़ी हो, कैसे मेरे बच्चे जो है वो अमेरिका चले जाए, कैसे हम सेटल हो जाए. ये सब सोचे, वो सब हम सोचते यही फलना फूलना होता है. यही फलना फूलना नहीं होता है.
प्रभु बोला मैं तुझे इसलिए चुना हूं कि तू जाए और किसी को भी लाके बपतिस्मा दे, जल्दी से फोटो भेज फॉरेन में और पैसा आएगा। तू जाके ऐसा कर, कोई प्रीचर को देख ले बड़ा सा और उसको बुला के मीटिंग कर और उसके बगल में खड़ा हो जा, तेरा भी फोटो निकलेगा। लोग बोलेंगे ये बड़ा प्रीचर के साथ खड़ा होता है, ये बड़ा होने वाला है। हाँ होता है, मैं वही प्रैक्टिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ से निकल के जाने के बाद ये सब होगा। तो वो जाके आप बड़ा प्रीचर के साइड में खड़े हो गए और बड़ा प्रीचर जैसा प्रीचिंग करता है उसका स्टाइल पकड़ लिया और उस स्टाइल में प्रीचिंग, ये शायद मुझे फलने फूलने देगा। नहीं, प्रभु बोलता है मैं तुझे चुना हूं, तू मेरे लिए फलेगा। हालेलुया, तू मेरे लिए फलेगा। तू किसी दूसरे के लिए नहीं फलेगा, अपने लिए नहीं फलेगा, तू मेरे लिए फलेगा। आई हैव चूजन यू टू फ्रूट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, नॉट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए नहीं। प्रभु बोलता है यू गो एंड बियर फ्रूट, तू जाके फल फूल, तू जाके परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाकर अपना किंगडम मत बना। अपना किंगडम मत बना। अपना किंगडम बनाएगा, परमेश्वर का किंगडम को डुबाएगा, तेरे को भी परमेश्वर डुबाएंगे नरक में, तुझे भी परमेश्वर डुबाएंगे नरक में और बोलेंगे ये कौन है भाई, इसको मैं नहीं जानता। कभी दिखाना लेके अपना डिग्री, ये देखो प्रभु ये मुझे मिला था, मैंने मैं तेरे को पहचानता नहीं हूं, तू कौन है। प्रभु बोलेगा उस दिन। प्रभु बोलता है संभल जा और सुन ले, ये जो रोब मैंने आज तुझे दिया है, ये जो गाउन में तुझे आज पहनाया है, ये जो टोपी आज तेरे सर पे है, ये कहती है कि मैं तुझे चुना हूं और तुझे नौकरी दिया हूं, तू मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए फलेगा, मेरे लिए फूलेगा और मेरा साम्राज्य को बढ़ाएगा, अपना साम्राज्य को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है और लिखा है, परमेश्वर कहता है then the Father will give you anything you ask for in my name। और परमेश्वर कहता है तू मेरे पिता से जो मांगेगा परमेश्वर को देगा। हम यही पढ़ के इतना खुश हो जाते हैं, प्रभु तूने बोला है मैं जो मांगूंगा, मेरे को पहले तो पैसा चाहिए, उसके बाद तो घर चाहिए, उसके बाद गाड़ी चाहिए, ऐसा बीवी चाहिए जो फॉरेन में रहती होगी और फॉरेन से पैसा लाती होगी, ऐसा वाला बीवी बच्चे चाहिए, मुझे ऐसा सब चाहिए, मुझे चारों तरफ संस्थान बढ़िया सा चाहिए, पाइपलाइन होना चाहिए फॉरेन से डॉलर आने का, मुझे ये सब चाहिए। प्रभु बोलता है तू क्या सोचा है, ये जो लिखा है पढ़ के आधा पढ़ के तू बोलता है लिखा है तू प्रभु से जो मांगेगा वो मिलेगा। प्रभु से जो मांगेगा मिलेगा, सही बात है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, थोड़ा 7वां आयत में पढ़ लीजिए, उसी का आगे से प्रभु बोलता है। 7वां आयत में क्या लिखा है, 7वां वचन 7 वर्ष 7। हाँ, हिंदी में कोई भी लैंग्वेज में। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बना रहे, तो मेरा वचन तुम में बना रहे, और क्या है और मेरा वचन, यदि तू मुझ में बना रहे, मैं प्रभु में बना रहूं। प्रभु में मुझे बना रहना पड़ेगा। ये एक चीज है स्टेबिलिटी का, ये एक चीज है कंटिन्यूटी का। हम लोग ये जब मिनिस्ट्री शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे खुदक रहे थे, अब जब मिनिस्ट्री बड़ा होता गया, 10-12 साल हो गया, 15 साल हो गया और खुदक नहीं रहे हैं। हम लोग ऐसे बैठ गए, नहीं हम लोग 18-20 साल से मिनिस्ट्री करा, बहुत ऐसे पहले उछलते थे कूदते थे, अभी थोड़ा बैठ गए। नहीं, प्रभु बोलता नहीं तुम बैठे कहने के लिए मुझे नहीं बुलाया, मैं तुझे बुलाया हूँ, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ सोएगा नहीं, रुक जाएगा नहीं रास्ते में, तू मेरे साथ चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। परमेश्वर क्या कहता है, तू मेरे साथ रहेगा। कैसे रहूंगा प्रभु, तू तो चला गया 2000 साल पहले ऊपर, तू तो 2000 साल पहले ऊपर चला गया ना मेरे साथ, अभी इधर होता तो मैं तेरा चर्च अटेंड करता, मैं उधर बैठता, मैं जाके इधर घर बार बेच के मैं इजराइल चला जाता, जेरूसलम में जाके तेरे घर के पास में एक तंबू लगा के उधर बैठ जाता और मैं तेरा चर्च अटेंड करता। तू बोलता है मेरे साथ बना रहे, मैं तो दूसरा चर्च में बना रहा हूं। अभी परमेश्वर कहता नहीं मेरे साथ कैसे बना रहेगा, मैं बताता हूं तुझे कैसे बना रहेगा। नीचे लिखा है मेरा वचन, हालेलुया, मेरा वचन तुझ में रहेगा, मेरा वचन तुझ में रहेगा। कुछ साल पहले मैं एक चर्च में गया था, वो सेक्रेटरी सर है, थोड़ा प्रार्थना करेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो मैसेज।
तो सेक्रेटरी सर खड़े हुए, नाम नहीं बता रहा हूँ चर्च का, सेक्रेटरी सर खड़े हुए और बोले ये हम दुआ करते हैं, और सब लोग ने आंख बंद किया और वो पास्टर को ऐसे थोड़ा चिमट के चले गए। तो पास्टर खड़ा होकर प्रेयर करने लगा। मैं देख रहा हूँ अरे पास्टर का आवाज कैसे आ रहा है। तो प्रार्थना के बाद में पूछे क्या हुआ भाई, वो क्या हुआ? नहीं उनको प्रार्थना थोड़ा नहीं आता है, वो इसके लिए हम लोग नहीं बोलते, आपको नहीं मालूम था। बोले वो चर्च का सेक्रेटरी है, वो चर्च का सेक्रेटरी है, प्रार्थना नहीं आता है। और उस रात को उनके घर में डिनर, और मैं जाके उधर पहुंच गया। वो देख के बड़ा डरा सा हैरान सा बाहर बैठा है। मतलब बुला उनको तो सब नहीं सर मेरे को नहीं आता है, आपने कैसे नाम। मैं पास्टर जी को बोला हूँ जो भी स्पीकर आते हैं उनको पहले से बता देना कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। आजकल ऐसे लोग चर्च में लीडरशिप लेते हैं, आजकल ऐसे लोग चर्च में लीडरशिप लेते हैं, ऐसे लोग सेवकाई में है, बाइबल का 4 पन्ना पढ़ के आ जाते हैं। प्रभु नहीं बोला है तुम 4 पन्ना पढ़ के आ जाओ। अगर ये नहीं है, दिस बुक इज सो पावरफुल दैट यू डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दिस। हालेलुया, दिस बुक इज सो पावरफुल। If you are reading this book with the power and authority of Jesus Christ and with the leading of the Holy Spirit, there is nothing that can stand before this word of God. और ये जो बाइबल है ये इतना पावरफुल बुक है, ये जो वेपन है, ये जो अस्त्र है आपके हाथ में, अगर खाली इसको आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा से भर के पढ़ते हो, इसके अलावा कोई दूसरा किताब आपको नहीं चाहिए इस जमाने धरती में है ही नहीं जो हमको परमेश्वर का राज में हेल्प कर सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ये बोलता है, परमेश्वर आज कहता है चर्च यू नीड टू रीड दिस बुक बिकॉज दिस इज द पावर एंड अथॉरिटी गिवन टू यू ऑल। ये है वही बुक। और परमेश्वर कहता है मेरा वचन अगर तुझ में है, मेरा वचन अगर तुझ में है तो तू फलेगा फूलेगा। अगर वचन नहीं है तो तू कुछ नहीं कर सकता। क्या लिखा है साथ में, फिर से पढ़ेंगे थोड़ा भाई। यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, एनीथिंग कैन हैपन टू यू, प्रेज गॉड। जो भी तुम चाहो, जो भी तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो भी तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा है इंग्लिश में, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू वांट एंड इट विल बी गिवन टू यू। यू कैन आस्क एनीथिंग, तुम्हें जहां इच्छा करो। बोले उड़िया बाइबल में लिखा है, उड़िया बाइबल में आपने देखना उसमें लिखा है कि तुम जो इच्छा करो, जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो वो हमारा चाह को भी देखता है, बिकॉज वी आर यूनिक पीपल, because we are coded people. Today we are coded. हम लोग का इससे पहले कोड नहीं था, अब कोडेड है। देखिए डॉक्टर्स लोग मैं इधर से पहचान सकता हूँ, लाल पेन है, और उसके बाद सर थियोलॉजिकल डिग्री ब्लैक, उसके बाद व्हाइट में रेवरेंड ऑर्डिनेशन के, सब लोग हम लोग अलग अलग कोड में हैं। ये कोड पहले नहीं दिया गया था। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे चुन लिया हूं, तुझे कोडिंग किया हूं, तुझे कोडेड किया हूं। और परमेश्वर कहता है कि ये जो वचन, ये अगर तेरे अंदर है, तू अगर परमेश्वर का वचन को जानता है, उसे मानता है, उसके साथ चलता है, तो परमेश्वर बोलता है तेरी चाह को भी मैं देख रहा हूं। आई एम लुकिंग टू योर हार्ट एंड आई नो योर डिजायर्स। हालेलुया, यू डिजायर, जस्ट आप खाली इच्छा कर लो, वो हो जाएगा आपके लिए। प्रेज गॉड। हमको किसको लेकर बोलना नहीं, भैया मैं मिनिस्ट्री करता हूँ, बड़ा दुख में, बड़ा दुख में, कोविड आपको मालूम है सब लूट लिया, सब खा गया, मेरा बच्चा खा गया, मेरा हस्बैंड खा गया, मेरा वो खा गया, मिनिस्ट्री के ऊपर पैसा नहीं है, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से। आप तो बड़ा है, बड़ा प्रीचर है, बड़ा नहीं। परमेश्वर में तू भिखमंगा नहीं है। हालेलुया, तू भिखमंगा नहीं है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे नियुक्त किया हूं। तुम्हारा मालिक कौन है तुझे नहीं मालूम है, तुमको कौन अपॉइंट किया है तुमको नहीं मालूम है। परमेश्वर बोलता है आस्क मी। वी आस्क एवरीवन बट वी डोंट आस्क गॉड। हम सबको बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कुछ लोग तो प्रार्थना में भी बोल लेते हैं, घर में आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना प्रभु मेरे मिनिस्ट्री को आज 5,000 रुपये चाहिए, घर वो घर का रेंट देना है, और 2,000 रुपये चाहिए, बच्चे का एडमिशन है, 3,000। ये प्रेयर है।
ये प्रेयर है। परमेश्वर बोलता है यू डोंट बिलीव योर बॉस, यू डोंट बिलीव योर ओनर, यू डोंट बिलीव योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो टाटा में काम करते हैं, जो बड़े एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो ईएमआई में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह ज्यादा रखते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको मालूम है कि 30 तारीख हो गया, 28 तारीख हो गया, पैसा आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज टाटा, दिस इज सो एंड सो, दिस इज ये है वो है, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। 28 तारीख, 1 तारीख नहीं होता है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको मालूम है ये पैसा आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। लेकिन हम इतने गए गुजरे हैं, इतने बेकार लोग हैं, जिसने हमको अपॉइंट किया है, जिसने हमको बुलाया है, जिसने हमको ये नौकरी दिया है, हम उसको विश्वास नहीं करते कि वो देगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है तू मेरे वचन को विश्वास नहीं करता। लंबा लंबा भाषण मारना कोई नहीं सीख सकता है, मोदी भी सीख गया चाय बेचने वाला, लेकिन हम नहीं। प्रभु नहीं चाहते तू भाषण सीख जा, प्रभु नहीं चाहते तू लंबा लंबा फेंकना सीख जा, प्रभु नहीं चाहते तू डायलॉग मारना सीख जा। प्रभु बोलता है डायलॉग मत सीख, विश्वास करना सीख। परमेश्वर बोलता है तू डायलॉग मत सुना। डायलॉग बहुत लोग बोलते हैं, जो डायलॉग बोलते हैं उनका हाल इतना फटा होता है, उनको देखने से पता चलता है। उनका घर देखो, वो डायलॉग बोलने वाले होते हैं। उनका फैमिली लाइफ देखो, उनका परिवार देखो, वो डायलॉग बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो लाइव परफॉर्मेंस जो है कॉमेडी करते हैं, वो मत करो। विश्वास करो परमेश्वर के वचन में। हम लोग बोलते बहुत हैं, हम लोग बोलते बहुत हैं, विश्वास कम करते। हम पढ़ते बहुत हैं, याद रखते हैं, बड़ा लंबा नोट्स बनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग ने क्या कुछ किया। प्रभु बोलता है जो मुंह में आपने बोला है उसको विश्वास करो, जो तुमने बोला है उसको विश्वास करो। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग उधर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये सब तुम्हें दिया जाएगा। और 8वां आयत में, 8वां वचन में क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तभी हालेलुया। 1 फल नहीं, 2 फल, 5 फल नहीं। जिंदगी में एक आदमी को बड़ा मेहनत से मैंने सुनाया, बहुत मेहनत से एक आदमी को प्रभु के पास लाया था, वो अभी शराब पी रहा है। बहुत मुश्किल से एक आदमी को प्रभु के पास लाया था, वो आजकल शराब का ठेला लगाकर बैठा है। और अब तो मैं उम्र हो गया, अभी क्या करूंगा, अभी कुछ नहीं, चर्च में कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु बोला तुम बहुत फल लाओ। हालेलुया। बहुत फल लाओ। और ये फल खाली दूसरों का फल नहीं, आत्मा को नहीं तो क्या करते हैं लोग आजकल, जब भाई तू मेरे चर्च में आना, 500 रुपए ले, 500 रुपए ले, संडे को सर्विस को तू आ और तू दूसरे को लेके आ और 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी तुझे। ऐसे चर्च में मैं देखा हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। ऐसे चर्च में 18-20 साल में देख लिया, बहुत सारा क्या कराया, देख लिया प्रभु का किंगडम में कैसा कैसा काम होता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाके बहुत फल लाओ। पहले खुद का फल हो तभी तो दूसरे का फल लाओगे। खुद का फल नहीं है, हमारा कुछ फल नहीं है। हम बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, प्रभु की सेवा में है, फल कुछ नहीं। आत्मा का फल क्या है? गैलेशियंस 5:22 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, सब जानते हैं। हम लोग पढ़ के आए, रट लिए हैं उसको, लोगों को भी रटाते हैं। ये सब तुम पढ़ के आओ। आत्मा का वो फल होता है प्रेम। नहीं, एक आदमी ने बोला भाई साहब मेरे पास आत्मा का जो फल है वो भर भर के है, लेकिन खाली एक चीज नहीं है, मैं सह नहीं सकता। मैं सह नहीं सकता। मैं बोला थोड़ा खोल के दिखाओ कहाँ पे लिखा है ये फल जो आत्मा का है। गैलेशियन 5:22 कोई पढ़ेगा, अगर इमीडिएटली जल्दी खोल सकता है तो 5:22 में क्या लिखा है? फ्रूट। हाँ, और आत्मा का फल प्रेम, और आत्मा का फल इंग्लिश में क्या लिखा है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लिखा है। अच्छा, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लिखा है कि आर लिखा है? इज। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज। आत्मा का फल ये सब है बोल के नहीं लिखा है। आत्मा का फल एक है, और वो फल के अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, सहना है, और ये सारे चीजें हैं जो वहां पे लिखा है।
Praise the Lord. नींबू पानी से अगर आप नींबू निकालोगे तो क्या रहेगा? पानी रहेगा। और नींबू पानी से पानी निकालोगे तो क्या रहेगा? कुछ भी हो जाएगा, वो नींबू पानी नहीं रहेगा। हम लोग जो साइंस के स्टूडेंट है, मालूम है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है? पानी होता है। अगर 1 ऑक्सीजन कम उसमें है, 1 ऑक्सीजन ज्यादा लगा दिया तो क्या हो गया? H2O2 हार्ड वाटर हो गया, जो बैटरी में डालते हैं, डिस्टिल वाटर हो गया। अगर ऑक्सीजन 1 है करके है कि 1 ऑक्सीजन में निकाल दो, उसको निकाल दिया तो क्या बचा? H2 हाइड्रोजन गैस। कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो पानी नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। आत्मा का फल से आप प्रेम निकाल दो, वो आत्मा का फल है ही नहीं। वो धीरज निकाल दो, आत्मा का फल कैसे बनेगा? वो you change anything from the ingredients that the fruit of the spirit bears, it is no more the fruit of the spirit. Hallelujah. ये कोई दूसरा पेड़ का फ्रूट है, मैं नहीं बता सकता कौन सा पेड़ है, और कुछ दूसरा पेड़ का फ्रूट है, लेकिन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज नॉट दैट। परमेश्वर का वचन कहता है ये है फल जो हमको धारण करना है। और कितना धारण करता है? एक सड़ा हुआ सिंपुड़ा सा इतना छोटा नहीं, बहुतायत से बहुत फल लाओ, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। और मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट फ्रूट। हालेलुया। टाइम नहीं है, नहीं तो आप पढ़ लोगे घर में, आप सब तो ज्ञानी गुणी हैं, आप घर में जाके पढ़ लेना। परम वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन में क्या लिखा है, वहां पे कोई सड़ा हुआ, कोई सिकुड़ा सा छोटा मोटा कोई फल के बारे में कुछ लिखा नहीं है। सब सुंदर, सब टेस्टी लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा है। ऐसा फल प्रभु को देना है। प्रभु बोलता है मैं तुझे आज कैसे सजाया, तू ढंग से सोच के भी नहीं आया होगा, इतना सुंदर दिखेगा लाल पीला हरा ड्रेस में। प्रभु बोलता है मैं जैसे तुझे सजाया तू अपने आप को और सजाएगा। हालेलुया। तू अपने आप को और सजाएगा और संवारेगा। हमको मालूम है परमेश्वर ने एक गार्डन बनाया, वो गार्डन का नाम था एडन। और एडन गार्डन के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत रिसर्च भी किए हैं। एडन गार्डन के अंदर वो जो पहला आदमी को बनाया उसमें रख दिया और बोला तू एक काम कर। क्या कर? एडन गार्डन में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर 2 वर्स 15 वर्स पढ़ लीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। आदम की भट्टिका में वही रहता है जो काम करना चाहता है। जो काम नहीं करना चाहता उसको कोई ये नहीं है कि प्रभु वहां पे उसको रखे। आज प्रभु चाहता है कि हम काम करें। हालेलुया, हालेलुया। इसको लेके घर में टांगने का नहीं है, जैसे पास्टर जी बोले, इसको लेके टांगे देखते रहना नहीं है, निहारना नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा आज बेल बजा के आया हूं। नहीं, प्रभु बोलता है दिस इज योर ड्यूटी, तुम काम करो। आओ लेके जाओ जी। ओडिया बाइबल में आप देखोगे, ओडिया बाइबल में लिखा है कौन से करवा को लिखाला ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଯେପରି ତୁମେ उद्यान को सुसज्जित और रक्षा करिबो। तुम उसको सजाना है और उसकी रक्षा करना है। हालेलुया। तुम सजाना है। मैं तुमको बुलाया परमेश्वर के सेवा के लिए, मैं तुमको बुलाया परमेश्वर की सेवा के लिए। तुमको पहचान मिला प्रभु की सेवकाई का, और ये जो पहचान प्रभु दिया है, प्रभु बोला मैं तुझे अलग किया हूं और अब से तू संवारेगा अपने आप को, सजाएगा अपने आप को, रक्षा भी करेगा। क्योंकि बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं ये जो वस्त्र हमको मिला है, बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं, बहुत जल्द हम खराब हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं ना वो हमको पसंद नहीं करते। थोड़ा वापस चले जाएंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 18 में क्या लिखा है, वर्स 18 जहां से हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ 18 कोई भी लैंग्वेज पढ़े। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुझसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया। यदि संसार में थोड़ा आदत टाइप का आदमी हूँ, जहाजी आदमी हूँ, खोलताड़ करने का वो आदत मेरा है पुराना, तो मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको बहुत खोलताड़ा देता हूँ। तो प्रभु ये यदि तुमने क्यों लिखा, इफ क्यों लिखा?
इफ देन जो है ना, ये जो कंजक्शन लग जाता है जब इंग्लिश में और ये उड़िया में भी किंतु परंतु जो भी आप लगाओ, उसके बाद में ही समस्या शुरू हो जाती है। ये अगर नहीं होता बाइबल बहुत आसान होता समझने के लिए, लेकिन प्रभु जानबूझ के इसको रखा है। और यहाँ पे लिखा है अगर ये समाज, अगर ये पृथ्वी में रहने वाले, धरती में रहने वाले, अगर संसार के लोग तुझे घृणा करते हैं, बैर रखते हैं, तो तू समझ जा, इसका मतलब संसार के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया, संसार के लोग तुमसे बैर रखेंगे। लिखा है इफ द वर्ल्ड हेट्स यू रिमेंबर दैट दे हेटेड मी फर्स्ट, पहले वो मुझे अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, मुझे पहले मारे, मुझे पहले क्रूस पर चढ़ाया, बाद में अभी तुम्हारा बारी है। दे हेट यू बिकॉज दे हेटेड मी, वो लोग पहले मेरे साथ ऐसे कर चुके हैं। अगर मैं सह के इस धरती में जीवन गुजार चुका, तुमको भी वही करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है इफ यू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड द वर्ल्ड विल लव यू एज इट लव्स इट्स ओन पीपल। क्या लिखा है हिंदी में? यदि तुम संसार के होते, अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। हालेलुया, समझ जाओ भाई, बात इसी में ही है, गहरा चीज इसी में ही है, सब चीज लिखा है। अगर संसार तुमसे प्रेम करता है ना, बड़ा लंबा नमस्कार करता है और बोलता है भाई तुम क्या, तुम तो प्रधानमंत्री के बात ही हो, हम तुमको पूज रहे, तुम तो पूजे जाने वाले लोग हो, तो कुछ नहीं, तो कुछ गलत है, तो कुछ गलत है। इफ दिस वर्ल्ड लव्स यू देन समथिंग गड़बड़ इज देयर, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये संसार के लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि संसार के लोग किसे प्रेम करते हैं? वहां पे लिखा है संसार के लोग अपनों से प्रेम करते हैं, जो संसारिक होते हैं, जो संसार के साथ चलते हैं, उनको प्रेम रखते हैं। ये प्रभु के लोग नहीं है, ये प्रभु के लोग नहीं है। लिखा है एंड दे love you as it loves its own people, but I have chosen you to be different. Hallelujah, praise the Lord pastor, for Alag Church. Hallelujah, hallelujah, you have to be different. Praise the Lord, you have to be alag, you have to be separated, you have to be something not usual. Hallelujah, unusual people, they are the spirit filled people. आत्मा में चलने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ये प्रभु के लोग हैं। प्रभु चाहता है मैं तुम्हें चूज किया हूं, आई हैव चूजन यू टू बी डिफरेंट, अलग होने चाहिए। हिंदी में क्या लिखता है भाई? परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। नहीं, आप कहां से पढ़ रहे हो? 19। हाँ 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए ये थोड़ा अलग ट्रांसलेशन हो गया। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है I have chosen you to be different from those who are in this world. ये संसार में जो लोग हैं उनसे अलग होने के लिए प्रभु तुमको चुन लिया है। प्रभु आज तुमको चुना है एक स्वतंत्रता के लिए, एक अलग काम के लिए, एक भिन्नता के लिए जो हमें दिखना चाहिए। हालेलुया। एक मास्टर जी ने बोला देखो कोविड का टाइम है, नौकरी ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, और प्रभु बोलता है तुम घर में बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, और कुछ भी काम करो प्रभु के लिए करो, प्रभु की महिमा के लिए करो। और चर्च में अपना दान दशमांश लेके आ, और लड़का गया, बड़ा सच घटना मैं बता रहा हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। लड़का गया, बहुत सोचा, चारों तरफ घुमा, क्या करूं जो कि कोविड में भी चले, जो कि कितना भी कुछ हो जाए, सारा वर्ल्ड बंद हो जाए, लेकिन मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। घूम फिर के बड़ा रिसर्च करने के बाद वो सोचा एक काम करता हूँ, देसी दारू का ठेला खोल लेता हूँ और लाइसेंस ले लेता हूँ गवर्नमेंट से बंद करने का, किसी का बाप का भी दम नहीं।
और वो देसी दारू का ठेला खोल लिया और दान दसवां के चर्च में देने लगा। ये बड़ा बड़ा पैसा आने लगा, पूरा झोला भर भर के। पास्टर जी बहुत खुश हो गए। एक दिन वो बोला, सर आज एक बड़ा सा मेरा जो बिजनेस है बढ़ गया है कारोबार, आप थोड़ा आइए प्रार्थना करने के लिए। पास्टर गया प्रार्थना करने के लिए, कहा मैं खोल दिया हूँ चौक पे पूरा एकदम NH के बगल में, आप आइए प्रार्थना करें। मेरा छोटा सा ठेला था बड़ा हो गया। तो ये गया पास्टर जाके देखता है देसी दारू का दुकान और उसमें लाइसेंस नंबर भी लिखा है और वहाँ गेट के सामने फीता लगा हुआ है सफेद रंग का। और ये गया पास्टर, बोलते है कहा मैं ये है, आपको फीता काटना है। मेरा दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की और मेरा बिजनेस फैल गया। पास्टर क्या बोलेगा? बोला इसी के पैसे से तो मैं छत डाला हूँ चर्च का, अभी प्रार्थना करना पड़ेगा। गया प्रार्थना किया और रात को मेरे को फोन किया, ऐसा ऐसा हो गया भाई, मेरे से बड़ा गलती हो गया। ऐसा नहीं करने के लिए प्रभु बोला है, कुछ भी हो जाए मेरा घर चलता रहे, ये प्रभु के किंगडम में नहीं होता है। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है, यहाँ पे लिखा गया है, आई हैव चूजन यू टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अलग हो जाना है तुमको। ये जो संसार के लोग हैं उनका चाल अलग है, उनका थिंकिंग अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका देखने का नजरिया अलग है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सबसे अलग हूँ। हालेलुया। और तुमको अलग हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। Once again, thank you for the beautiful name, अलग चर्च। Praise the Lord. और परमेश्वर कहता है, so you don't belong to this world, and that is why the world hates you. So you don't belong to this world. सब लोग अपना अपना हाथ उठाए करें, I don't belong to this world. I don't belong to this world. I don't belong to this world. Hallelujah. मैं इस संसार के लिए नहीं हूँ, मैं इस संसार के लिए नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए हूँ, मैं अलग हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूँ। मैं ये संसार से उत्पन्न नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे अपने लिए चुन के आज अलग कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज मुझे चुन के अलग कर लिया है। आज परमेश्वर कहता है, दैट्स व्हाई दिस वर्ल्ड हेट्स। इसलिए ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, ये तुझे घृणा करता है। ये जो संसार तुझे घृणा करता है, यहां से घृणा शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्त। जब से मिनिस्ट्री के लिए हम समर्पित हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शैतान को, डेविल को तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक हम डेविल के साथ हैं। काफी लोग डेविल के साथ रहते हैं और मिनिस्ट्री करते हैं और इसके लिए उनको कुछ नहीं होता है। वो सेफ साइड अपना चुन लेता है, देख मैं सेफ में हूँ, सेफ जोन में रहना चाहता हूँ, मैं अनसेफ नहीं होना चाहता। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं करती। मैं आपका आत्मा नहीं पढ़ सकता, प्रभु पढ़ता है। आपके मन को मैं नहीं पढ़ सकता, प्रभु पढ़ता है। और प्रभु बोलता है, अगर तुम मेरे साइड में आ जाए तो याद रखना, ये संसार तुझे प्रेम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर तुम मेरे साइड में आ गया ना, बहुत सारे लोग तेरे अगेंस्ट में चले जाएंगे। परमेश्वर कहता है, लेकिन तुझे मुझ में बना रहना है। परमेश्वर कहता है, तेरे अंदर मेरा वचन भर भर के रहना चाहिए ताकि तू जिंदा रह सके। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन जिसके अंदर है वो जिंदा है। हालेलुया। उसका वचन अगर मेरे अंदर है, मैं जिंदा रहूंगा, मैं फलूंगा, मैं फूलूंगा। वो चाहे धूप हो, वो चाहे रेगिस्तान हो, रेत हो, चाहे सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, मैं फलूंगा और मैं जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं मरूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है, बहुत सारे लोग, हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री शुरू करते हैं और भाग के चले जाते हैं। चलो भाई, स्टार्टिंग विथ स्पिरिट, एंडिंग इन फ्लेश। प्रभु बोलते हैं, ऐसा वाला मैं चुन के, क्या सोचता होगा वो मालिक, क्या सोचता होगा? अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी गूगल में कोई काम करता है, कोई अमेजॉन में काम करता है, कोई टाटा कंसल्टेंसी में काम करता है, वो नौकरी छोड़ के बोलेगा नहीं नहीं मैं जाता हूँ घर, ये मुझसे नहीं होगा, तो लोग क्या बोलेंगे उसको? बोले अपने पैरों में क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है? कुल्हाड़ी मुझे दे दे, मैं खोद लेता हूँ तेरे लिए कमर। नहीं, प्रभु बोलता है, तू विश्वास करना पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु बोलता है, इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, कष्ट है, दुख है, गिलानी है, तुम्हारे लिए सब है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो कौन है? वो क्या कर सकता है?
क्या नहीं कर सकता है? कोई जानता है वो क्या नहीं कर सकता है? हम में से what he cannot do, what God cannot do. ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? नहीं है। तो वो आपको पैसा दे सकता है, आपका परिवार का तत्व ले सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर एस्टैब्लिश कर सकता है, आपका मिनिस्ट्री चला सकता है, आपको बहुतायत आशीर्वाद दे सकता है, आपको फल फुला सकता है, आपको संसार में जो चाहिए वो सब दे सकता है। दे सकता है तो हम विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों हम छोड़ के भाग जाते हैं? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मान लो और जान लो। अगर ये डिग्री के साथ लिख के भी पेपर में ले लो अपने बाइबल में, परमेश्वर कहता है यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाई द वर्ल्ड हेट्स यू। हालेलुया। जब भी आपके मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ पल आएंगे, डगमगाना लगेगा, हमारा कॉलिंग के बारे में हम सोचेंगे मैं सही में आया था, तो मुझे चुना है कि नहीं, मैं ऐसे ही आ गया। तब इस वचन को याद रखना, ये ऑर्डिनेशन लेने के टाइम में, आज कन्वोकेशन के टाइम में, यहाँ से वापस जाते हुए ये वचन को हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। परमेश्वर कहता है ये संसार तुमसे घृणा करता है क्योंकि वो मुझे घृणा करता है। वो तुमसे प्रेम नहीं करता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। और परमेश्वर कहता है तुम भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चुन लिया हूँ। आज परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें चुना है अलग अलग कार्य के लिए, किसी को वर्शिप करने के लिए, किसी को प्रीचिंग करने के लिए, किसी को टीचिंग करने के लिए, किसी को ऐसे लोगों को और प्रभु की सेवकाई के लिए अलग करवाने के लिए, जैसे इनको प्रवीण भाई को प्रभु ने चुना है, ऐसे अलग अलग कामों के लिए प्रभु लोगों को चुना है। हम एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं है। तुम मैं ये करूंगा, जो गाना गाता है वो बोलेगा मैं भी कीबोर्ड बजाऊंगा, मैं भी गिटार बजाऊंगा, मैं भी वो बजाऊंगा, तो कैसा होगा? प्रभु बोलता नहीं, मैं तुझे किसके लिए चुना वो मांग ले, वो जांच ले। परमेश्वर बोलता है तू आजा और वचन में देख ले मैं तुझे किसके लिए चुना हूं। परमेश्वर हमें चुना है एक स्पेसिफिक रीजन के लिए। और परमेश्वर बोलता है ये याद रख मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर वही चाहता है हमसे, टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हालेलुया। ये ऑर्डिनेशन का पार्ट है। मैं चाहूंगा जितने भाई बहन हम लोग ऑर्डिनेशन के लिए हैं, व्हाइट रोब्स में बैठे हैं, हम लोग अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाए और परमेश्वर बहुतायत से हमको आशीषित करने जा रहा है। प्रेज़ ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। और ओनली ऑर्डिनेशन, जो ऑर्डिनेशन लेते हो, हाँ, जो लोग ऑर्डिनेशन के लिए हैं, वाइट में जो लोग हैं, हाँ, बाकी ये कोडिंग के हिसाब से जाएंगे। हाँ, तो please come to the front, come to the dais, and I request all the reverends and pastors, those who are in this area, in this house today, they can also join in this ordination ceremony, and they can stand in their place, and they can lay their hands from there. Hallelujah. those are already ordained pastors, जो ऑर्डिनेशन लिया है पहले। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हम सब अपने अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग चले जाएं। क्योंकि आज एक सबसे इस धरती पर अगर कोई बेहतरीन सा काम है जो परमेश्वर की जलवा को दिखाता है, जो परमेश्वर के पराक्रमी लोगों को खड़ा करता है, वो ये है। हालेलुया। इस मंच पर परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के अंदर हम लोग अपने आप को रख लें, प्रभु को कहें प्रभु तू अपने आप में हमको ढाल दे। हालेलुया। अपने से जैसे हमको बना ले। हालेलुया। प्रेज़ ऑलमाइटी गॉड। Let the anointing flow in Jesus' name. Let the mighty anointing flow upon every one of us in Jesus' name. Oh, hallelujah.
Let the strength, hallelujah. Let the strength of heaven open right now. Hallelujah. Let the floodgates of heaven open right now. Let the blessings from heaven, let the blessings from the throne of Christ come down and touch everyone in Jesus' name. Hallelujah. 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 प्रभु तुम्हारा से अभिषेक को विश्वास कर सकता. Oh hallelujah. We declare the glory. We declare the mighty wonder working power upon everyone. In Jesus' name. We declare your authority. We declare your power. We declare Usama Shakara. Victory Alama Shama Sama. Sakara Shikara Vidya Bhattara Shikara Sama. Sriya Vandina Shama Sama. Sama Shama Shama Vidya Sama. Prabhu Abhishek और धारण करते हैं खुदा है पूर्ण आत्मा में संपन्न हो जिसको निभाना है जिसको करना है Let the glory fall. Let the glory fall in Jesus' name. Let the glory fall upon every individual right now. In Jesus' name. From the prophet of Baptist the tomorrow. तुम्हारा अभिषेक तुम्हारा उद्धार था. जब परिश्रम है. और तुम्हारा से पराक्रम अपना जीवन अनुभव करने. और भयान कहना है. किंतु अपना तुम्हारा उपस्थिति को अनुभव करो. सेवा कार्य प्रति हमारे परिवार में साहाय्य करियो. और बाबा संतान लोग छेड़ जाओ. चोरी से धन सही जाओ. एक बार से बाहर को चुप सेवा कार्य सीधे साथ करियो. पिता प्रार्थना करो जिससे करना है. और बाबा तुम्हें जो अभिषेक दो. जो अभिषेक दो तुम्हारे भगवान को प्रेरणा करो. से अभिषेक हमें स्वर्ग में घोषणा करो पिता. जिससे करना है. Let them kill. Let them provide us your kingdom. Let them grow in gospel. Oh hallelujah. प्रभु तुम्हारे अभिषेक करें. ताकि सारा तो सकते. और बाबा मंगल बुद्धि प्राप्त हो जाओ. सेवा कार्य तुम्हारा बहुत परमात्मा बन जाओ. सेवक पिता सुन कर प्राप्त वचन को सच बात कर पाता. इस बात को पकड़ दो. तुम्हें मत पाप करो. यीशु का नाम में वचन करो. Father God, we thank you. You are the awesome God. You love everybody, Lord. It's a great party that everybody must be saved with the knowledge of Jesus Christ. I commit all the pastors, evangelists, and reverends. It's not we, it is you, God. You are going to anoint them with the Holy Spirit. They will not look back but look forward to see the glory of God and be the grateful for the glory of God. Lord, we don't look left or right. We don't look back but look unto you. Everything comes from you for the glory of God. I name them in the name of Father and Son and Holy Spirit. Use them mightily as a Sunday school teacher and a youth leader and a preacher and a teacher. Sweet in the name of God. Lord, your name will be glorified in the name of Jesus. We thank you for every blessing of God. Give you glory. God bless you. Thank you.